and welcome back. So we are in 15th video in lecture series for daily practice problem for the examination CGPDTM prelims examination. So far we have covered 14th lecture on daily practice problem, and specifically we are practicing reasoning and aptitude. So those questions are very important, and if you look and analyze the questions of those 14 videos that you have already gone through, then you will realize that these questions are in lining with the pattern of examination. So these are, I can say, the maybe most expected question that may come into your examination, that kind of pattern. So it is recommended to go through these questions, and आपको इसका जो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा विद द नेम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर CGPDTM. So let's look into today's session. So today will be our 15th video, and let's see how much question we can practice. Before that, last time there were few questions, so we have got few comment with the answer, and these are from Sweet and again from Nirav and from Enthalpy Music and from Nirav. Yes, so these answers are correct. So okay, and one query is regarding, can you please tell me about expected prelim date? So as per the latest tweet of QCI, so what we can predict is that they will conduct soon. So they are preparing for the whole examination, and if you see the current tweet of QCI, that is Quality Control of India, then maybe they will conduct the examination soon. So what you have to do is to आपको हमेशा अभी जब तक डेट नहीं आया था एटलीस्ट 1 to 2 आवर यू कैन डिवोट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे. सो एंड रिगार्डिंग द कब होगा कब नहीं होगा, दैट नो वन कैन tell you at the exact date, so until or unless they are working there. So but you can expect it soon, so as per their tweet. Okay, so let's move into the today's session. Okay, so आज का पहला क्वेश्चन ये है. So you can solve this question also. आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, फर्स्ट यू क्या करिए, आप वीडियो को रोकिए एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड क्रॉस चेक इट इफ़ यू आर गेटिंग करेक्ट और रॉन्ग, एंड एट द एंड just let me know your marks in the comment, so that way you will also be confident, and I will also get something that you have watched the video and you have solved the problem. So at the end you can, if you wish, you can comment your marks, that how many questions you have solved correctly, कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट सॉल्व किया, दैट यू कैन मेंशन. सो इट इज़ एज पर योर विश. सो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि the number of times the 5 will appear while writing the integer from 1 to 1000. so कितनी बार आएगा 1 to 1000, अगर आप राइट डाउन करिएगा 1 से लेकर के 1000 तक 5 कितनी बार आएगा. सो दैट इज़ द क्वेश्चन. सो ओवरऑल we will have the like 1 digit नंबर भी होगा, एंड
लेकिन हाँ ये तो होगा कि अगर 1 डिजिट नंबर है तो ओनली यूनिट प्लेस होगा। 2 डिजिट नंबर होगा अगर 1 से 1000 के बीच में, डेट विल ऑल्सो हैव यूनिट एंड टेंस प्लेस। एंड अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो यूनिट, टेंस एंड 100 प्लेस, दीज 3 प्लेसेस विल बी देयर। सो अगर हम सिर्फ एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ग्रुप ऑफ नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं, लाइक वी कैन डिवाइड फ्रॉम 1 to 100 मे बी 1 to 100 and then from 200 to 100 to 200, not 101 to 200. So like that we can divide from लास्ट क्या होगा आपका 900 to 999, और यू कैन से 1000, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1000 में से भी 5 नहीं आने वाला है। ठीक, तो ओवरऑल जो है ये कितने का ग्रुप बनेगा, ये 10 ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखिए, आप अगर यूनिट प्लेस पे देखिएगा, अगर यूनिट प्लेस पे देखिएगा तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आएंगे। अगर 1 से हम 100 के बीच में देखें, 5 आएगा यूनिट प्लेस पे, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा। तो इस टाइप के 1 से अगर 100 तक में देखें जिसमें कि सिर्फ यूनिट प्लेस पे आपका 5 आए, तो इस टाइप के कितने नंबर हैं, इस टाइप के ये 10 नंबर है, टोटल 10 नंबर है, जो कि जिसमें कि यूनिट प्लेस पे 35 आएगा, फिर 45, तो इस तरह से आपका 95 तक लास्ट जाएगा। तो इसको काउंट करिए आप, कितना आएगा, 10 नंबर आएगा। तो ये 10 एक ग्रुप से 10। इसी तरह से हर एक ग्रुप में हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे, सिर्फ यूनिट प्लेस पे हम बात कर रहे हैं, तो हर एक ग्रुप से आपको 10 मिल जाएगा, हर एक ग्रुप से 10। तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे 5 हो, इसमें से हमको टोटल कितना हो बन जाएगा, तो 10 10 10 10 10 ग्रुप है टोटल, तो 100 नंबर यहाँ से आएगा। ठीक है, 100। नाउ अब आप 10th प्लेस पे आइए। 10th प्लेस पे आने का मतलब, अब आप यहाँ देखिए, इस प्लेस पे आपको किस तरह के नंबर मिलेंगे। तो आपको मिलेंगे ये 5, 51, 52, 53 अप टू 59। अगर 1 से लेकर के 100 तक के बीच में देखें तो 10th प्लेस पे 5 जो आएगा, देखिए है ना, 10th प्लेस पे 5, तो ऐसा कितना नंबर बनेगा, ऐसा 10 नंबर बनेगा। फिर अगर इस ग्रुप में देखेंगे तो 10th प्लेस पे 5, इसमें भी 10 बनेगा। ठीक, इसी तरह से 10 10 10 करके 10 का इसमें भी 100 बनेगा। ठीक, अब आते हैं हम 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे जो है 5 कब अकर होगा, आप खुद के सोच के देखिए कि क्या 1 से 100 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जहाँ पे कि 100 प्लेस, सबसे पहली बात तो 1 से 100 के बीच में 99 नंबर जो होगा वो 2 डिजिट का ही होगा, तो 100 प्लेस का कोई बात ही नहीं पैदा होता है। 1 से लेकर 200 के बीच में ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जिसके 100 प्लेस पे 5 आए। किस में आएगा, तो वो आएगा इस ग्रुप में 500 to 599, इस ग्रुप के बीच में आएगा, और यू कैन से 600 अप टू। ठीक, तो इस ग्रुप में आएगा तो ऐसा कितना नंबर होगा, तो ऐसा जितना भी होगा सारा होगा, क्योंकि हर एक 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा कितना नंबर होगा, 100 नंबर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, 100 + 100 + 100, डेट मीन्स कि 300। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 300 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट opposite faces are of same color. The cube is cut into 36 cubes of different size such that 32 cubes are small and the 4 cubes are big. None of the face of the bigger cube is painted blue. Okay, how many cubes have only one face painted? Okay, so what we can do is, let's take any upper face of the cube. So overall क्या पूछा है ना कि how many cubes have only one face painted. Okay, let's first of all divide this one. तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से सेम वे अगर हम इसको
ये हो गया। ठीक, अगर हम इसको टॉप व्यू ले रहे हैं तो ये तो श्योर है 100% कि इधर वाले जितने होंगे, जो कॉर्नर वाले होंगे, ये तो 3 कलर लेगा ही लेगा। इसमें 3 फेसेस जो होगा वो पेंट होगा, 3 फेस जो इसका पेंट होगा। तो ये तो वन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, ये पूछा था, ये सारा नेगलेक्ट होगा सबका। ठीक, उसके बाद से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला साइड वाला जो पार्ट है वो भी नहीं आएगा, साइड वाला पार्ट भी कोई नहीं आएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि कट इनटू 36 क्यूब्स ऑफ 2 डिफरेंट साइज, यहाँ पे 2 डिफरेंट साइज है, सच दैट 32 क्यूब्स आर स्मॉल्स। तो 32 क्यूब्स आर स्मॉल्स है, चलो ठीक है। एंड अदर क्यूब्स 4 क्यूब जो है वो क्या है, वो बिग है। ओके, सो अगर हम, ये सारा छोटा क्यूब है जिसको कि हम कंसिडर किया है, और नन ऑफ द फेसेस ऑफ बिगर क्यूब इज़ पेंटेड ब्लू। तो ये ध्यान रखना है कि 3 कलर है मेरे पास और तीनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब कि अपोजिट इन द सेंस कि अगर ये अपर, ये अगर हम ले रहे हैं एक तरह से, इसको ले लीजिए आप इसको ले लीजिए कि आपका जो है, ये आप ले लीजिए कि ये येलो से पूरा पेंटेड था। ठीक, तो ये तो फर्स्ट, ये और ये कॉर्नर वाला और साइड वाला तो और भी दूसरा कलर से नीचे वाले से पेंटेड होगा, हम लोग सिर्फ टॉप व्यू देख रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसको हम एक बिगर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज़ पेंटेड ब्लू। सो अब ये चीज़ देखिए, ये अगर इसका टॉप व्यू है तो इसके नीचे जो होगा बॉटम वाला, वो भी किससे पेंटेड होगा, येलो से ही पेंटेड होगा। ठीक, और येलो से ही पेंटेड होगा, तो डैट मीन्स कि हम लोग ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हम लोग बिगर क्यूब में ले सकते हैं। तो 2 पार्ट तो हमें मिल जाएगा, कहाँ से, एक इससे और एक पीछे वाला, और वो ब्लू पेंटेड नहीं होगा क्योंकि दोनों येलो से है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, अब पीछे नहीं मतलब इसके बॉटम बोलिए, जैसा आपको दिख रहा है बॉटम या पीछे जो भी दिख रहा है। तो अब एक क्या हो सकता है कि अगर इसके ऊपर एक दूसरा वाला पार्ट है जो कि वो भी आपका येलो से नहीं पेंटेड है, वो समझ लीजिए ब्लैक से है, ब्लैक से, तो ये वाला पार्ट मान लीजिए आपका ब्लैक से पेंटेड है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एक सेम वे में एक बिगर क्यूब ले सकते हैं। ठीक, अब ये वाला और इसके एग्जैक्टली जो नीचे वाला रहेगा उससे भी ब्लैक पेंटेड रहेगा, डैट मीन्स कि वहाँ से भी हम दूसरा बिगर क्यूब ले सकते हैं। तो बिगर क्यूब का रिक्वायरमेंट 4 हो गया। अब इधर वाला जो साइड होगा, ये साइड वाला, वो क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, ब्लू एंड ब्लू। नाउ आपको अल्टीमेट क्या फाइंड करना है कि वन फेस पेंटेड। तो वन फेस पेंटेड में आपका कौन कौन सा साइड चले गया जिसमें आप वन फेस वाले को कंसिडर नहीं कर सकते हो। ये आपका येलो वाला दोनों चले गया क्योंकि इसमें बिगर क्यूब ही निकल गया। ये ब्लैक वाला भी चले गया, यानी कि 4 साइड चले गया। 4 साइड में से 2 साइड बचा हुआ है। 2 साइड में से ये कॉर्नर वाला और ये साइड वाला और ये कॉर्नर वाला नहीं हो सकता क्योंकि सब में 2 कलर होगा, यानी तो 3 कलर होगा फेसेस में। ठीक, बचेगा ये बीच वाला पार्ट ही। ठीक, अब ये बीच वाला पार्ट को अगर हम स्मॉलर सिर्फ क्यूब काउंट करें जिसमें कि सिर्फ 1 फेसेस हो, तो इसमें आपका कितना जाएगा, एक साइड में 1 2 3 4 आ जाएगा और 2 साइड में ब्लू वाला का टोटल 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 8 होगा। ठीक, अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन कॉमेंट इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोल रहा है ना कि ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक, इफ़ बी इज़ प्लेस्ड ऑन top of A. Okay, so if B is placed on top of A, the weight increased by 60%. अगर A का वेट 100 था तो अब जो है टोटल वेट कितना हो जा रहा है, 160. हाउ मच वेट विल रिड्यूस्ड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ A एंड B.
So how much weight will be reduced with respect to this if B is removed from the top of A. So with respect to किसका पूछा है, total weight of A and B. So total weight of A and B is 160 and how much we are removing is 60 into 100. So this should be the answer. तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 37.5%, 75%, 75 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका करेक्ट आंसर 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ना, सम स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है। सो सम रैट्स आर कैट्स, so some rats are cats, okay, some cats are dog, so some cats are dog. No dog is cow, so this is the reason for dogs, right? ये जो आपका टोटल रीज़न है वो किसके लिए, डॉग के लिए। सो अगर हम पूछे कि नो डॉग मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डॉग, सो दैट विल फॉल फ्रॉम दिस आउटसाइड रीजन, राइट? सो दे आर नो डॉग। और एक भी ये भी ध्यान रखना है कि नो डॉग का रिलेशन अभी हम और किसी के साथ कुछ नहीं दिया हुआ है। सो नो डॉग, बट वी आर कंसिडरिंग दिस एज ए नो डॉग, राइट? नाउ अब कंक्लूज़न पढ़ते हैं। बोल रहा है कि अच्छा, नो डॉग इज़ ए काऊ, सो नो डॉग इज़ ए काऊ मतलब कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री है डॉग का, जो एक तरह से अपोजिट बोल सकते हैं, ये सारा रीजन जो है वो मे बी आपका नो डॉग का है, ठीक है? और नो डॉग इज़ काऊ, सो within this region no dog is cow, ठीक है? हाँ, आप बोल रहा कंक्लूजन की नो काऊ इज अ कैट। सो अगर ये पीला वाला रीजन काऊ का है, दैट मीन्स कि नो डॉग इज काऊ का है, दैट मीन्स ये ग्रीन वाला रीजन जो होगा वो नो काऊ का होगा, मतलब कि काऊ का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? तो अब बोल रहा है कि नो काऊ इज़ ए कैट। सो ये वाला रीजन हो सकता है, ये कॉमन वाला रीजन, ये वाला रीजन, और ये भी रीजन हो सकता है। तो नो काउट इज़ ए कैट पॉसिबल है, बट वी कैन नॉट से, क्योंकि वो डॉग भी हो सकता है। तो पॉसिबल है बट डेफिनेट नहीं है, ठीक? तो ये इसको हम नहीं लेंगे। फिर बोल रहा है कि नो डॉग इज़ ए रैट। सो नो डॉग कहने का मतलब क्या, ये येलो वाला रीज़न, नो डॉग इज़ ए रैट, ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये रीजन जो है इस तरह से हो, तो और नहीं भी हो, क्योंकि रिलेशन कुछ दिया हुआ नहीं है स्टेटमेंट में नो डॉग और रैट के बीच में। तो ये भी पॉसिबल है बट डेफिनेट नहीं है। फिर सम कैट्स आर रैट्स, सो सम कैट्स आर रैट्स, तो ये वाला सेक्शन है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो सम कैट्स आर रैट्स, तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 3 इज़ करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी formed from the set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines। तो आपके पास कुछ सम 4 parallel lines है, L1, L2, L3 and L4, and another set of parallel lines है, that is P1, P2, P3, P4। so L1, L2, L3, L4 and P1, P2, P3, P4। तो बोल रहा है ना कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम डैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग वन
intersecting another set of parallel line. तो कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम यू कैन फॉर्म. तो तो आपको अगर आप पैरेललोग्राम बनाना है तो सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल एंड दिस वन इज पैरेलल. सो अगर इस साइड को सेलेक्ट करना है, सो यू हैव गिवन 4 चॉइसेस टू सेलेक्ट फ्रॉम दिस. अगर आपको इस टाइप का सेलेक्ट करना है तो 4 आउट ऑफ 2. सेम वे इसके लिए आपके पास कितना है, 4 आउट ऑफ 2. एंड दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सेम ये भी उतना ही होगा. और ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 6. दैट मीन्स की टोटल 36 पैरेललोग्राम कैन बी फॉर्म्ड. सो इसको अगर आप और सिंपल ब्रेक डाउन, ये तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए. और भी ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं. L1 अगर इन दोनों लाइन को लेना है, इन ये दोनों पैरेलल लाइन को लेना है, डैट मीन्स यू कैन सेलेक्ट L1 के साथ आप क्या ले सकते हो, L2 ले सकते हो. फिर L1 के साथ क्या ले सकते हो, L3 ले सकते हो. फिर L1 के साथ क्या ले सकते हो, L4 ले सकते हो. ये दोनों तो सेलेक्ट हो गए. ठीक, इसी तरह से आपके पास इस दोनों को सेलेक्ट करने का और क्या क्या चॉइस है कि आप L2 के साथ L3 ले लो या L2 के साथ आप L4 ले लो. सेम वे आप L3 के साथ L4 ले लो. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. सेम आप इसमें भी कर सकते हो. मतलब ये दोनों को अगर सेलेक्ट करना है तो 6 चॉइसेस आपको यहाँ पे हो गए. टोटल 6 चॉइसेस यहाँ पे हो गए. और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. मतलब कि आप इस चॉइसेस को इसके 6 चॉइसेस के साथ ले सकते हो. सेम वे इस चॉइस को इसके 6 चॉइसेस के साथ ले सकते हो. तो हाउ मच यू विल गेट इज 6 times 6 दैट इज़ 36. इसके साथ 6 बनेगा इसका, इसके साथ 6 बनेगा इसका, इसके साथ 6 बनेगा इसका. तो 6 12 इस तरह से करते करते आपको 36 टोटल हो जाएगा. तो यही चीज़ यहाँ पे. ठीक, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये क्या बोल रहा है ना कि इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ए स्टूडेंट is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football. तो ये तो सिंपल है. मतलब दोनों क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहा है और जो क्रिकेट खेल रहा है, जो फुटबॉल खेल रहा है, उसके पास जो नंबर असाइंड है वो डेट डिविजिबल बाई 4 है. और जो क्रिकेट खेल रहा है उसके पास जो भी असाइंड नंबर है वो डिविजिबल बाई 6 है. डैट मीन्स कि ऐसा नंबर जो 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो. तो क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे. 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा. तो 12 का जितना भी मल्टीपल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा. तो 1 से 100 के ही बीच में देखना है. तो अब तो कहाँ तक जा सकते हैं, 12 8 96. तो 8 डिजिट 12 के काउंट में 8 तक जा सकते हैं. यानी कि 12 8 96, उसके बाद से तो 100 से पार चले जाएगा ना. तो टोटल कितना काउंट हो जाएगा, ऐसा 8 काउंट हो जाएगा, जो कि बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट प्ले करेगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि व्हेन ए रनर was crossing 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometer was the runner supposed to run in the event? तो ये तो 80% आपका इक्विवेलेंट किसके, 12 के. तो 100% आपको निकालना. 100% इक्विवेलेंट कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100. 5 4 3 15. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. राजू हैज ₹9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of
the amount required to buy the handset. Therefore, he borrows rupees 2000 from his friend. Then, okay, so 75%, that means he has 90,000. 100% जो होगा टोटल हैंडसेट का प्राइस निकल जाएगा. सो 100% वुड बी इक्विवेलेंट टू इतना इंटू 100. सो ये 3, ये 4, ये 3000, ये हो जाएगा 12,000. यानी कि टोटल हैंडसेट का दाम कितना हो गया? 12,000. सो राजू स्टिल, अगर 2,000 इससे लिया तो इसके बाद अभी टोटल कितना हो गया? 11,000 हो गया. सो राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट. तो यही करेक्ट आंसर होगा. सो इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इन 2002 मीनूज एज वॉज 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा, वेयर एज in 2010 Meenu's age was half the age of Meera. What is the Meenu's age year of birth? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या बोल रहा है कि राकेश एंड राजेश टुगेदर अबाउट 10 balls and 10 rackets. Rakesh spends 1,300 and Rajesh spends 1,500. If each racket cost 3 times the touch the ball, so अगर 10 बॉल खरीदा ये x रुपया में, तो रैकेट कितने में खरीदेगा? 10 रैकेट खरीदेगा 3x रुपीज़ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एंड हाउ मच बोथ विल बी कॉस्ट? सो दोनों का कॉस्ट हो जाएगा 1,800. सो हाउ मच x यहाँ से कितना आ गया? 40x इज इक्वल्स टू 1,800, 2,800 होगा. ठीक है, तो ये x आ जाएगा आपका 40. सो क्या बोल रहा है कि देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ए रैकेट? सो एक रैकेट का प्राइस कितना है? 3x. यानी कि अरे यार ये क्या करें हम, ये 70 होगा ना, तो 3 इंटू 70 डेट मीन्स कि 210 रुपये. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इन ए कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स 70 आर इंडियंस. सो आउट ऑफ 100 70 आर इंडियंस. इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, then which of the following is or are correct? At least 30 Indians participants are vegetarian. So अगर 100 participants है उसमें से 70 जो है इंडियन है, एंड इफ़ 60 participants are vegetarian, so 60 अगर हम वेजिटेरियन ले लें तो 40 जो होगा वो नॉन वेजिटेरियन होगा. सो अगर इस 17 इंडियंस में से अगर हम 40 नॉन वेजिटेरियन ले लें तो 30 ऐसे ज़रूर होंगे जो वेजिटेरियन होंगे ही होंगे. सो मगर मैक्सिमम केस भी कंसिडर करके चल रहे हैं, तो एटलीस्ट 30 इंडियंस पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन. तो ये करेक्ट है. और क्योंकि अगर हम 40 मान लेते हैं, 70 में से 40 जो है इसी में नॉन वेजिटेरियन है, तो 30 तो कम से कम होगा ही जो कि वेजिटेरियन होगा. दूसरा का एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन. एटलीस्ट 10. सो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ कि 60 जो है टोटल पार्टिसिपेंट्स है जो कि वेजिटेरियन है. तो अगर बोल रहा है कि अगर इसमें से हम अगर इस 70 में से 60 को हम असाइन कर देते हैं जो कि वेजिटेरियन पार्टिसिपेंट्स है टोटल, तो 10 जो होंगे ऐसे जो कि नॉन वेजिटेरियन होंगे ही होंगे. इफ़ 60 ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स, अगर टोटल हम 60 इसी में से असाइन कर दिए
वेजिटेरियन, ठीक है, तो दोनों केस ट्रू है, बोथ केसेस आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो P, Q, R, three towns, the distance between P and Q is 60, whereas the distance between P and R is 80 kilometer. Q is the west of P and R is in the south of P. What is the distance between Q and R? So इसका आंसर भी आप कमेंट करिएगा मुझे, इसका आंसर क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर विच वन 9, इस दोनों का आंसर कमेंट करिएगा, और आपका टोटल स्कोर कितना हुआ वो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।